بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے نام سے شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور رحیم ہے. إذا جاء نصر الله والفتح. جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی. ایک حرف تمنا ہو پڑی دیر سے چپ ہوں کب تک میرے مولا مولا کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا مولا کب تک میرے مولا مولا کب تک میرے مولا. میرا نام منظر بھوپالی ہے. میری پیدائش دسمبر کی ہے. ایک مطلب دو شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ شب غم میں سنہرے دل سے تعبیریں بناتے ہیں. شب غم میں سنہرے دل سے تعبیریں بناتے ہیں کہ ہم زخموں سے مستقبل کی تصویریں بناتے ہیں کہ ہم زخموں سے مستقبل کی تصویریں بناتے ہیں. آپ کا دوست محسن ساحل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آئیے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ اس وقت اشرے اردو 8ویں اشرے اردو کے آخری پروگرام جس کو آپ لوگ گرینڈ فنالی کہنے یا جس کو ایوارڈ فنکشن کہنے یا اعزازی تقریب کہنے کے بہت سارے تکلفات آپ برت سکتے ہیں. میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اپنی مسکراہٹوں کے ساتھ اپنی تالیوں کے ساتھ. میں ایک شعر پڑھوں گا اس کے بعد آپ کی تالیوں اور آپ کی مسکراہٹیں اور بہت سارا اس پروگرام کا پھر سے استقبال کے. دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے کو. محمد خان صاحب کو کبھی سر کہہ کے مخاطب کرتے ہیں کبھی بھائی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. میری پوری زندگی میں کسی بزم کسی محفل کے لیے میں نے ایک صدارت قبول کی ہے تو وہ صدارت فرید بھائی کے لیے. میں اپنے صدر کو بہت اعزاز کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ استقبال کرتا ہوں. آئیے سر. اور 10 دن میں ہمارے جو مہمان یہاں پر تشریف فرما ان کو بتا کہ پہلا پروگرام 26 تاریخ کو انجمن اسلام CST میں شروع ہوا. بیچ میں کبھی سنڈے یا کوئی اور دن آ گیا یا کوئی ٹیکنیکل ریزن سے یا جیسے 6 دسمبر کا دن تھا تو ہم نے بہت سارے دن کچھ 2-4 دن پروگرام نہیں کیے. اس طریقے سے آج یہ آخری پروگرام جو اشرے اردو کے اختتامی پروگرام ہے اس میں آپ تمام فرقہ یہاں پر موجود ہیں. آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے. یہاں پر کچھ پرفارمنس ابھی آپ نے دیکھی یہ ایک نچوڑ ایکسٹریکٹ تھا. یہ اس لیے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ الگ الگ اسکولوں اور کالجز میں ہوئے تھے تو سب لوگوں نے اس کو بیک وقت نہیں دیکھا تو ہم نے سوچا کہ کم از کم جو لوگ جن کی پرفارمنس اول پہلے آئے ہیں وہ تو لوگوں کے درمیان ضرور جائے کہ ان کو اول انعام کیوں دیا گیا تھا. یہاں پر ہمارے معزز مہمان جناب محبوب دودھ والا صاحب تشریف فرمائے. محبوب بھائی برائے کرم ڈائس پر تشریف لائیں. آپ انجمن خیر الاسلام گروپ آف اسکول کے اور کالجز کا جتنا چین ہے اس کے کئی ٹرسٹیز میں سے ایک اہم ٹرسٹی ہیں اور ہمارے درمیان یہاں پر نعیمہ صاحبہ موجود ہیں جن کی کتاب کا اجرا ہوگا. بہت معروف شاعرہ اور مصورہ ہیں. آپ کا خیر مقدم ہے. برائے کرم اسٹیج پر تشریف لائیں. اردو تنظیموں کی کثیر تعداد ہوتے ہوئے بھی ایک نئی تنظیم کے قیام کا خیال ایک بہت ہی جرأت مندی اور جنون کے درمیان کی وہ ایک باریک لکیر تھی جس پر فرید احمد خان اور ان کے چند رتبہ کھڑے تھے. شہر ممبئی میں کئی فعال اردو تنظیموں کے ہوتے ہوئے بھی اردو کارواں کا قیام اس لیے عمل میں آیا کہ فرید احمد خان اور ان کے رفقا کو شجر اردو کی ٹہنیوں سے زیادہ جڑوں کی فکر لاحق تھی. یہ اردو کو صرف اسٹیج اور پروگرام کی حد تک نہیں رکھنا چاہتے تھے بلکہ اردو کارواں کے قیام کا اولین مقصد یہ تھا کہ اردو کی خدمت کا آغاز تعلیمی کیمپس سے کیا جائے اور اردو کارواں کو تعلیمی کیمپس سے وابستہ کیا جائے.
मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, डाइस पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन, ख़वातीन, ख़ुसूसी तौर पे अभी जब मोहतरमा बोल रही थी तो मैं सुन रहा था और थोड़ी तहरीर के साथ महमूद फराज का शेर याद आ रहा था कि सुना है बोले तो होठों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात सुन के देखते हैं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की उन्होंने आलमी हवाले से उर्दू के फैलने के असबाब अदल पर भी बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने रोशनी डाली। अदब के मासिर अदब के बदलते हुए जो तकाज़े हैं, मैंने बहुत गौर से उस दिन के मुशायरे में शिरकत भी की, सुना भी और सुनाया। नौजवान शोराए कराम जो आपके मुशायरे में शरीक हुए, ख़ास तौर पर उनकी शायरी के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो इस बात का सबूत अज खुद फराहम हो जाता है कि अदब मासिर अदब के बदलते हुए तकाज़े क्या हैं। बहुत अच्छी होनी चाहिए बता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ खादिम ज़ुबान अदब का एक एजाज जाता है। मुशायरे देखें जिसमें सारे नौजवान शरीक होते हैं और बहुत अच्छे से कलाम पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जनाब बेगम रेहाना अहमद साहिबा, मोहतरमा बेगम रेहाना अहमद साहिबा, गर्ल बोर्ड की चेयरमैन अंजुमन इस्लाम की। हाँ, अब दे दीजिए। गुलपेश करते गुलपेशी की रस्म। भाइयों से कहा मुंबई के पास प्रोग्राम शॉट अब साथिया कोई मुकाबला, इसके लिए मैं सलीम होटल वाला साहब से गुजारिश करती हूँ कि वहाँ 3 बच्चों को इनाम दें। सेकेंड प्राइज मिला है शहनाज इफत। शहनाज इफत आइए, कोई और आके ले लो, आप लोगों में से कोई और। सेकेंड प्राइज में मुकाबले में मिला है रईस। रईस को सेकेंड मिला है। इंडिया क्लाफर कमेटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेकेंड प्राइज। ऑल इंडिया क्लाफर कमेटी ऑफ तालियां पकड़ी। अभी है तमाम कॉलेज का शुक्रिया, लेकिन जिन्होंने
बहुत से मुकाबलों में फर्स्ट प्राइज हासिल किया है, जैसे कि तमसीली मुकाबले में, बैतबाजी में, रील में सेकंड। शुक्रिया सर। और इसी तरह हमें सपोर्ट मिला ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ऑफ एजुकेशन में शबाना मन्नू और उनकी असातिज़ा से गुजारिश करती हूँ कि वो आए। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। एक सेकंड सर। अरे हो जा। हो गया आप लोगों का। भाई जो अगली नजीकों में गैस देंगे वो लोग भी आ जाए तब लोग नहीं अब तमाम शबाना साहब आए प्लीज आप आए भाई साहब स्कूल आप भी आएंगे प्लीज आप आएंगे जो और भी टीचर्स मौजूद हैं वो सब आ जाएं। और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विमेंस कॉलेज शोबा उर्दू में एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज हूँ। ये कारवां जो है और इसके जो रूहे रवा है फरीद खान साहब, दरअसल वो और उनकी पूरी टीम जितने खुलूस, लगन, मोहब्बत और ईसार और एक जज्बे के तहत अपने फोरम से काम करते हैं। हम बहुत दूर यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर रहते हुए भी ये उनकी मोहब्बत है कि हम उतनी दूर से हाजिर हुए और हमने देखा कि यहाँ फरीद खान साहब ने और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से उर्दू के बच्चों को प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो इनामात हैं उनको तरतीब दिया और तरतीब देने के बाद जिस खूबसूरती और जिस खुशूसलूबी के साथ इतना बड़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया, ये काबिल मुबारकबाद है। और हमारी दुआएं हैं कि हर साल इसी तरह, ये तो 8वां इजलास है, इंशाअल्लाह और रहमान इसके सैकड़ों इजलास मुनक्किद हो और ये जो कारवाने अदब है, ये कारवाने अदब हमेशा रवा दवा रहे, ताबनाक रहे, चमकता रहे और ये सिलसिला मुंबई की सरजमीन में जारी व सारी भी रहे और फिर यहाँ से भी निकल के आगे की दुनिया तक भी फैले और पूरे हिंदुस्तान को अपनी आगोश में ले ले। यही हमारी तरफ से नेक तमन्ना है। और मेरा एज अ प्रोफेशनल मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ और मैंने गज़लें भी लिखी हैं, नज़में लिखी, बहुत अखबारात में भी, रिसालों में भी शाये हुई हैं। इस वक्त मेरा यहाँ आना खिलाफत हाउस में इस वजह से हुआ है कि यहाँ जो तहनीती और इख्तितामी जलसा हुआ, 8वां जलसा जो हुआ, इसमें फरीद भाई साहब जो हमारे उर्दू कारवां के रवा हैं, उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं अपनी किताब जिसको मैंने मरतब किया है, मेरे वालिद मरहूम का शेरी मजमुआ था जो मसूदा था, जो मंजर आम पर नहीं आ पाया, उनके इंतकाल के बाद रह गया। आज से 35 साल, मैं कहूँगी 37-40 साल पहले का होगा, तो उसको मैंने मरतब किया और शाये करवाया था।
उसी बुनियाद पर मुझे फरीद भाई ने यहाँ जब यहाँ ये प्रोग्राम जलसा हुआ मुझे बुलाया इसके इस इजरा के लिए, और फिर मैंने बहुत इसको अपने लिए खुशकिस्मती समझा। मैं यहाँ आई, यहाँ देखा, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मयारी जलसा था, बहुत ही मोअज़्ज़िज़ लोग शामिल थे और उनके शमूलियत से मेरी किताब का इजरा हुआ। ये किताब मेरे वालिद मरहूम के मसूदे से बनी थी और वो भी बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे मुसव्विर थे। तो मैं समझती हर बच्चों को, आने वाली नस्ल को अपने बुजुर्गों का, अपने वालिदैन की इस विरासत को, जैसे हम जायदाद लेते हैं अपने वालिदैन से, इसी तरह उनसे उनकी ये विरासत, उनके ज़मान की, उनकी तहजीब और अदब की इस विरासत को भी हमने अपनाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। बस इसी गर्ज से मैंने यहाँ उस किताब को मरतब किया, शाये किया और मुझे बड़ी खुशी है। उससे मुझे इस कदर पज़ीराई मिली, लोगों ने बहुत पसंद किया। अभी इस जलसे में भी लोगों ने मुझसे आके मुझसे बात की जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ये जो सारे 8-10 लास्ट 10 दिन से उन्होंने जो कंपटीशन किया था हमारे सारे उर्दू मीडियम स्कूल्स और डीएड कॉलेजेस के बच्चों का, जिसमें और टीचर्स का भी, जिसमें जो भी बच्चे ने पोइट्री में और पब्लिक स्पीकिंग में वगैरह सारे में जो एक्सेल किया था उनको उन्होंने अवार्ड दिया। और इस प्रोग्राम में मुझे आके बेहद खुशी हुई कि फरीद खान साहब इस तरह से प्रमोशन कर रहे हैं। लास्ट 10 साल से वो ये 8 साल से ये कर रहे हैं, उर्दू कारवां का जो प्रोग्राम कर रहे हैं लास्ट 8 साल से कर रहे हैं, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं उनको आगे ये प्रोग्राम वो कर सके, कंटिन्यू कर सके, उसके लिए मैं उनको खूब सपोर्ट करता हूँ और जज़ाकल्लाह मुझे बुलाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। इंशा फाउंडेशन का रुहनुमा हूँ और यहाँ आशाए उर्दू के लिए, जो कि उर्दू कारवां की तरफ से मुनक़िद किया जाता है हर साल, उसके लिए आया हुआ था। यहाँ पर मुझे उर्दू के खिदमतगार की हैसियत से एक छोटा सा अवार्ड भी दिया गया है। इस एजाज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, फरीद भाई का शुक्रिया, उर्दू कारवां का शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये प्रोग्राम होता है, ये जो तकरीब होती है, ये मोहब्बतों का प्रोग्राम होता है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो ज़बां है वो ज़बां माँ जैसी होती है और उस ज़बां को बोलने वाले जो होते हैं वो सारे उस माँ के बेटे होते हैं। तो जाहिर है कि अगर वो बेटे हैं एक ही माँ के तो भाई कहलाएंगे। तो इन भाइयों में हमेशा मोहब्बत हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाइयों में मोहब्बत रहती है तभी माँ जो है वो खुशहाल रहती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब भाइयों में मोहब्बत बढ़ती रहे। मैं फरीद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस कामयाब तकरीब की, इस प्रोग्राम की, और मुझे यकीन है और मैं आशा करता हूँ कि हर साल इसी तरह से खूबसूरत प्रोग्राम को मुनक़िद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। उर्दू कारवां में शनिचर को इस्लामुद्दीन खाना में एक मुशायरे का भी इनेकाट किया था। जी जी जी, इस बारे में आपने भी बहुत अच्छे इशारे किए थे। जी, इस बारे में क्या कहें? बहुत ही खूबसूरत मुशायरा था। हमेशा ही होता है मुशायरा जो होता है, या कोई भी एक कह सकते हैं हम लोग की एक तकरीब जो होती है, ज़रूरी ये होता है कि सुनने वाले अच्छे हो। उनकी भीड़ कितनी है ये ज़रूरी नहीं होता, सुनने वाले कैसे हैं ये ज़रूरी होता है। और जहाँ तक मैंने हमेशा देखा है कि उर्दू कारवां का जो मुशायरा होता है उसमें सुनने वाले जो होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं, तो वहाँ अपने अशार पढ़ने में हमेशा बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इतना ही कहना चाहूँगा इस बारे में। शेर आपका बहुत अच्छा है। मैं ये कहूँगा कि फरीद साहब जो है उर्दू कारवां के, वो खुशियाँ बना रहे हैं और खुशियाँ बांट रहे हैं। तो इसी जज्बे पर एक शेर कहना चाहूँगा मेरा कि लबों को बात ये अक्सर बतानी पड़ती है, लबों को बात ये अक्सर बतानी पड़ती है कि रस्म ज़िंदगी हंस कर निभानी पड़ती है। मैं ढूंढने कभी जाता नहीं कि जानता हूँ खुशी कहीं नहीं मिलती, बनानी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वैसे तो मेरा ताल्लुक मगरबी यूपी से है, पर इन दिनों मैं गालिबन कोई 14 साल से मुंबई के चेंबूर इलाके में मुकीम हूँ और कई बरसों से मैं फरीद भाई से और उनकी तमाम तहरीकों से जुड़ा हुआ हूँ और जितनी उनकी तकरीबात होती हैं लगभग सभी का मैं हिस्सा होता हूँ। बिलमखसूस अगर मैं बात करूँ अशरा उर्दू की, तो जो 9 रोज़ा प्रोग्राम होता है
इसका मैं इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ फरीद भाई का कि वो अपने माशी जिम्मेदारियों से वक्त निकालकर समाज के लिए काम कर रहे हैं, फरोग उर्दू के लिए काम कर रहे हैं, ज़बान से जुड़े हुए तमाम लोगों को यकजा करते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में वो एक तहरीक की तरह काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को तलबा और तालिबात को ज़बान से वो जिस तरह से जोड़ रहे हैं वो यकीनन काबिल सताइश है और मैं बड़े खुले दिल से इस बात की तारीफ करता हूँ। और ये जो 9 रोज़ा अशरा उर्दू आज इसका इख्तिताम हुआ है, मुझे भी एक अदना से खिदमतगार के तौर पर एक बराह निशानी एक एजाज़ बख्शा गया। मैं बेहद ममनून और बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं फरीद भाई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उर्दू कारवां के लिए दुआ करता हूँ कि ये काफिला यूं ही गामजन रहे अपनी मंजिलों की तरफ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, जंबील के ताल्लुक से मैं क्या कहूँ, नईमा जी और हम तो बरसों से साथी हैं, बहुत अच्छे साथी रहे हैं, इनको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझे जानते हैं और ये समझ लीजिए ना कि बहुत कम दोस्त हैं हम दोनों के ही, सही देखा जाए तो कुछ अच्छे मिलने जुलने वाले हैं, वही हमारे दोस्त हैं। इन्होंने कहा कि अब्बा की किताब है, कुछ शायरी इकट्ठा की है और मैं चाहती हूँ कि उसे तरतीब देकर मंजर आम पर ले आऊँ। मैंने कहा बहुत अच्छा काम है, ये तो सपूत किया करते हैं। अदब को जमा करना, उसको उसकी हिफाजत करना, उसे आइंदा नस्लों तक पहुंचाना, ये सपूत का काम होता है। मौलवी अब्दुल हक ने कहा है, बहुत अच्छा काम किया है एक सपूत होने का यानी नाते, और उस काम को आगे बढ़ाया, अपने वालिद साहब की तमाम तर शायरी को इकट्ठा किया। आज हमारे जमा होने का ये मकसद था कि अशरा उर्दू जो हर साल 10 दिन का अशरा उर्दू कारवां के ज़रिए मनाया जाता है, उसका आज इख्तितामी प्रोग्राम तकसीम इनामात था। अशरा उर्दू हम हर साल मनाते हैं, ये सिलसिला तकरीबन 8 साल से शुरू है। इस अशरे को मनाने का मकसद ये है कि तलबा में बहुत सी सरगर्मियाँ हम करा सकें, तलबा में खुद एतमादी पैदा हो, तालीम से मुतालिक शौक़ पैदा हो, बहुत सी चीज़ें जो वो भूलते जा रहे हैं उन्हें वो याद आए। जिस तरह ये अशरे में हमने मोनो एक्टिंग का मुकाबला रखे थे, तकरीरी मुकाबले थे, तमसीली मुकाबले थे, बैतबाजी के मुकाबले थे और साथ ही साथ हमने बज़्म याराने अदब के साथ गज़ल गोई का मुकाबला भी रखा था। ये बज़्म याराने अदब एक ऐसे नए उभरते हुए शोरा की टीम है जिनको एक मौका मिला, जिसमें हमने उनको इनामात भी दिए। ये प्रोग्राम हम इसी तरह हर साल करते हैं, जो स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, पीएचडी लेवल पे, इस तरह पीजी लेवल पे भी होते हैं। अभी कल ही हमारा एक मुकाबला मकाला खानी का था जो पीजी लेवल का था। ये अशरे उर्दू, इसके सदर जो हैं फरीद अहमद खान साहब हैं, जिनकी अनथक मेहनत है। ये उर्दू कारवां जो है 2016-17 की बात है। शोलापुर में मैं गया, वहां पर उर्दू किताब फेस्टिवल में NCPL का था, वहां पर कुछ साथियों से बातचीत हुई और वहां मुझे जाने के बाद वहां के लोग भी हमारे भाई जो है इस किस्म का कोई प्रोग्राम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना जो है अशरे उर्दू को मुंबई में किया जाए, क्योंकि इससे पहले किसी भी उर्दू तंजीम ने माजी में मैं भी उर्दू की मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से वाबस्ता रहा हूँ 2007 से, हमने फेस्टिवल वगैरह तो किए, लेकिन ऐसा एक मरबूत प्रोग्राम, एक मरबूत और एक पूरा कंसेप्ट बेस्ड प्रोग्राम जिसे कहें, खास तौर पर उर्दू कारवां की जो तश्कील का मकसद था कि हम जो है कैंपस में काम करेंगे, उर्दू की फरोग के लिए तलबा के लिए प्रोग्राम करेंगे और तलबा के मुकाम पर प्रोग्राम करेंगे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि तलबा के भी इंटर कॉलेज मुकाबले होना चाहिए। हर कॉलेज या स्कूल अपने अपना प्रोग्राम तो कर ही लेता है मुकाबलों के, लेकिन इंटर कॉलेज की सतह के प्रोग्राम कम होते हैं और उर्दू कारवां के क़याम का यही मकसद रहा। और ये उर्दू कारवां जो अगर दूसरी तंजीमों से आप मुझसे एक जुमले में पूछें कि किस तरह से मुनफरिद है या अलग है, तो मैं यही कहूँगा कि उर्दू कारवां जो है वो यूं इस तरह दूसरी तंजीमों से जुदागाना एक हैसियत रखती है कि हम हमारे 90% प्रोग्राम जो है वो तलबा के लिए करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, कुछ प्रोग्राम स्कूल की सतह पर भी होते हैं। और ये अशरे उर्दू समझ लीजिए
کہ جب हमारी तंजीम नौज़ायदा थी आज से 8 साल कबल, एक नौज़ायदा तंजीम के लिए एक 10 रोज़ा प्रोग्राम को सोचना और उसका इनाकाद करना ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही साल हमने इस चैलेंज को कबूल किया और ये कंसेप्ट जब मैंने अपने साथियों से जो उर्दू कारवां के हमारे फाउंडर मेंबर रहे हैं उनसे जब मैंने इस कंसेप्ट के बारे में कहा तो सबने कहा लब्बैक कहा. तो फिर हमने हिम्मत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 50 से ज़ायद कॉलेज मुंबई, भिवंडी, मुमरा, थाना, उरन यहाँ से जुड़े हैं जो हमारे मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह अशरे उर्दू के मुकाबले जो है उनकी इल्मी और अदबी और हर एतबार से जो है उनकी तरबियत करते हैं और उनके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस एतमाद बढ़ाने का जरिया बनते हैं. अभी इस बार के अशरे उर्दू को आप ले लीजिएगा तो हम लोगों ने सेकेंडरी की सतह से, स्कूल की सतह से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च स्कॉलर पीएचडी की सतह तक के हमने जो है मुकाबले किए और प्रोग्राम किए. और यहाँ से लेकर औरंगाबाद किए. औरंगाबाद में 4 साल कबल हमारी यूनिट का कयाम अमल में आया था, तब से लेकर वो भी हमारे साथ जो है शाना बशाना चलते हैं कदम ब कदम. और इस मरतबा भी यही 26 नवंबर से लेकर आज जो यहाँ 9 तारीख है, इसी दरमियान में उन्होंने भी जो है हमारे साथ अपना अशरा बनाया, मुकामी तौर पर प्रोग्राम किए. एक प्रोग्राम हमारा और औरंगाबाद का मुश्तरका ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ था. मैंने जैसा आपको बताया कि पीएचडी की सतह तक का वो प्रोग्राम कल हुआ. हमने जो है उर्दू के मुख्तलिफ मसाइल को या अदबी और इल्मी हैसियत को लेकर मुख्तलिफ मौज़ूआत दिए थे और मकाला निगारी का मुकाबला कराया था और उसमें कल 15 तलबा ने हिस्सा लिया. वो प्रोग्राम कल हुआ, वो हमारा और औरंगाबाद का मुश्तरका मुकाबला था. और यहाँ पर भी तलबा ने बहुत जोश खरोश से हिस्सा लिया, भिवंडी से लेकर, कल्याण से लेकर, और भिवंडी की तो कई कॉलेजेस आए, सलाहुद्दीन अय्यूबी कॉलेज, रईस हाई स्कूल, समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज. इन तमाम लोगों ने न सिर्फ मुकाबलों में शिरकत की बल्कि बहुत सारे इनामात जीते. अब देखिए तो सबसे ओवर एंड ऑल बेहतरीन परफॉर्मेंस का, सबसे बेहतरीन कारकर्दगी का इनाम जो है वो रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज को गया. और हमारे मुकामी चाहे अंजुमन इस्लाम के इदारे हों, अंजुमन खैरुल इस्लाम के, यहाँ जहाँ हम खिलाफत हाउस में खड़े, यहाँ के खिलाफत डीएड कॉलेज और आरसी डीएड कॉलेज ऑफ माहिम और आरसी डीएड कॉलेज ऑफ इमामबाड़ा कॉलेज तो खास तौर पर उर्दू कारवां का मैं समझता हूँ कि एक ऐसा अहम मरकज है और सुतून है कि वो उर्दू कारवां के कयाम से लेकर अब तक के मुसलसल कोई साल ऐसा ना हुआ जब उर्दू कारवां के वहाँ अशरे उर्दू के प्रोग्रामों का इनाकाद नहीं हुआ. तो यूं मैं समझता हूँ कि तकरीबन 10 दिन के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ 9 दिन तो मुकाबले ही हुए ज्यादातर. तो इन मुकाबलों में ऑफलाइन और ऑनलाइन मुकाबलों में अगर आप कुल मुकाबलों में शरीक होने वाले तलबा की या स्टूडेंट्स की आप या दीगर कैटेगरी के लोगों की तादाद देखें तो वो तकरीबन 500 से ज्यादा है. तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग जो है अपनी फरोग उर्दू की अदना सी कोशिश में बहुत सारे लोगों को अपने साथ समेटे हुए हैं. और ये तमाम उर्दू के इदारे और उर्दू से मुहिब्बान उर्दू ये इन्हीं की हिमायत और इन्हीं के सपोर्ट से जो है उर्दू कारवां रवा दवा है. और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उर्दू कारवां ये कोशिश करेगा कि वो अशरे उर्दू को लेकर उसमें मजीद निखार पैदा हो. और उसके अलावा आज मैंने यहाँ पर ऐलान किया बहैसियत सदर उर्दू कारवां कि हम लोग जो है जहाँ सीनियर लोगों के मजलिस आमला हमारी टीम है, एक नौजवान जो है तलबा तालिबात पर मबनी हम एक अलहदा ग्रुप तश्कील करेंगे कि जो उनके लेवल के प्रोग्राम, जो उनकी दिलचस्पी के इल्मी और अदबी प्रोग्राम जो है उसकी एक अलग से बज़्म बनाएंगे और उसके तहत भी साल भर इंशाल्लाह प्रोग्राम हुआ करेंगे.